आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6 बजे हुए हैं, वक्त हुआ है सलाम तक्कन का। कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान मरकजी हुकूमत के पैकेज को लेकर अपोजिशन की सियासत जारी है। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के राहती पैकेज के ऐलान की तफसील वजीर खजाना ने किश्तों में पेश की थी, जिस पर कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन लगातार तंज कर रहा है। मरकजी हुकूमत के स्कीमों पर सवाल उठाते हुए तेलंगाना के सीएम ने भी सरकार की पॉलिसी पर नाराजगी जताई है। कर्नाटक में भी मरकज के स्कीमों के हवाई उसको बताया जा रहा है। साबिक सीएम कुमारस्वामी के अलावा रियासती कांग्रेस सदर डीके शिवकुमार ने बिना किसी प्लानिंग के काम करने की बात कही है। हालांकि बीजेपी से अपोजिशन की नासमझी का नाम देकर अपनी पीठ थपथपाती दिखाई दे रही है। After Narendra Modi's announcement, Prime Minister's announcement, on 13th, our Honorable Finance Minister, on 13th, she announced first package of 6.5 crore, 6.5 lakh crore package, stimulus package. If we go through that stimulus package of 13th, what she announced, the worth of 6.5 lakh crores. Real burden on the government is only 2,500 crores, that's all. All other packages, what she announced on 13th issue regarding to ease out MSME's problems, all the thing is bogus. She has taken it, I think, very lightly, according to me, Honorable Finance Minister, who advised the finance department, who advised the central government. Really, I am surprised. According to my knowledge, during the time of this COVID period, one of the main important institution of the central government, 15th Finance Commission Advisory Committee. It shows the failure of the government in avoiding this virus. Both have failed. Both have failed. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. See, there is no planning. See, when the whole day you can work, Sunday you have to stop means, I don't know what is the difference between Sunday and the other days. If anyone can say, apart from the holidays, government holidays, there are so many days. I don't know, I can't, it is a very rare thinking. The country has won, Karnataka has won. Because you people announced one day, 100% it is unscientifical. It has ruined this country. There is no planning, no proper advisors. They are not taking advice of any common man. No consultation. It is only a dictatorial attitude. Mr. CM KCR, I think he has exceeded his limit as Chief Minister. He should not have used the word bogus and thrash, all these words which it is unbecoming of a CM against the Prime Minister and against the central government. The thing is that he has been demanding for a long time to increase the FRBM. FRBM means the power of taking the borrowings up to 3% of the GDP, and when they increase it to 5%, definitely the central government will have some conditions, and those conditions are not so big conditions where it will be a financial liability for the state. He wanted to mislead the people because he is a failure man. Firstly, he is a failed as Chief Minister of this country, of the state. So therefore, he wants to blame the Prime Minister of the country. He wants to shift the responsibility of his failure on the centre. So therefore, he is trying to blame the centre. See, he wants the amount to be given. 20 lakh package means it is not 20 lakh being given to the liquid, being given to, it is a 20 lakh support inputs of 20 lakh.
और मुल्क भर में हो रही परेशानी को देखते हुए काफी ताखिर के बाद वजारत दाखिला ने मजबूत कदम उठाया है। बाहरी मजदूरों पर कड़ा फैसला लेते हुए वजारत ने उनके घर जाने में किसी रियासत की मंजूरी को खारिज कर दिया है। लगातार हो रहे एक्सीडेंट और बढ़ रही भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसी दरमियान आज फिर कई जगह मजदूरों की काफी भीड़ देखने को मिली है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूर जमा हो गए। पिछली बार भी इस तरह की बार ट्रेन चलने की अफवाह फैली है और यूपी और बिहार के मजदूर वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि रियासती सीएम उद्धव ठाकरे लगातार उन्हें दिलासा देते रहे हैं, तो कर्नाटक के मंगलूर में हंगामा कर रहे मजदूरों को जल्द ट्रेन देने की यकीन दहानी के बाद मामले को शांत कराया गया है। एक तरफ मजदूर जहां अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं, तो वहीं हुकूमत और अपोजिशन लीडरान की सियासत भी उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। आपके लिए हम पूरी कोशिश करें, कोशिश नहीं, शुरुआत तो हुई है। ट्रेन से आप जा रहे हैं घर, बस से जा रहे हैं, तो ऐसे रास्ते पे मत चलो, रास्ते पे नहीं चलना। बीच में कोई फिर एक्सीडेंट कभी होता है, क्यों कर रहे हो ये सारी चीजें? आपके लिए हर एक राज्य के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू हो गई है, बस की सुविधा शुरू हो गई है। आप जहां भी हो वहीं पर रुके। हमारे पूरे स्टेट में अलग अलग जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स है, उनके सब साथी हैं, आपका इंतजाम वो कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। और जब भी ट्रेन की सुविधा, जैसे रोजाना कुछ ट्रेन चल रही है, कुछ उत्तर प्रदेश में जा रही है, बिहार में चल रही है, पश्चिम बंगाल में जा रही है, राजस्थान जा रही है, गुजरात जा रही है, जैसे वो आती जाएगी हम आपको भेज रहे हैं। बेताब ना होना, काही गरज नाहीये। तुम्हाला आम्ही पूर्णपणे सुरक्षितपणाने तुमच्या राज्यात आम्ही सोडतो आहोत। State government also, whatever they are now actually freeing the lockdown, they have not taken proper decisions how to get over from all these difficulties. There is no earlier planning. Without any planning, giving unnecessary trouble to the common man. Every day, this government doing all sort of problem to the common man. Only giving parcel, they can't survive. They can't pay salaries to their servants. Then almost all the services are What they are demanding, that is correct. With giving direction to those hoteliers, whatever central government guidelines regarding this COVID-19, that guideline they have to keep it properly. They are maintaining that guideline. They can run their business activities. For that, actually, government has to give permission. 3 दिन से रोड पर घूम रहे हैं, ना कोई खाने का मिल रहा है, ना सोने का मिल रहा है। कभी भी स्टेशन में जाएगा तो पुलिस वाला बोल रहा है अभी हटो हटो, ट्रेन नहीं आएगा, कल आ जाओ। फिर कल आएगा तो वापस बोल रहा है तुम हटो हटो, अभी ट्रेन नहीं है, कल आ जाओ। इस तरह से बोल के हम लोग को बोर कर दिया। अभी कल रात में बारिश आ गया, सोने का जगह नहीं है, खाने का चीज़ नहीं है, पीने का पानी नहीं है। पूरा आदमी सड़क पर सो रहा है सर। पूरा आदमी बिस्तर इस पे लगा के बिस्तर लगा के सो रहा है। क्या करेगा हम लोग मजदूर, बताइए। मन में क्या कष्ट आपको चल रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया में? यही कष्ट है कि हम लोग मजदूर होकर हम लोग कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है हम लोग को। क्या सोचता है हर एक आदमी ये मजदूर है, इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करने का। हर एक पॉलिटिशियन वाला, हर एक बड़ा बड़ा पैसा वाला के पास जा रहा है पूरा आदमी। ये मजदूर है ना, देश का आर्थिक व्यवस्था संभालता है, इसको कोई नहीं दिख रहा है सर। To observe the day as the same migrant workers day, and we are demanding this thing that we don't want any more death of any migrant worker. This is our main demand, because for the migrant workers there is no system to come back their native villages or states, and at the late hour, whenever the arrangement is done by the central government, to some extent they are also demanding train fare from the migrant workers. We are saying that this is a cruel behavior which has been done for the migrant workers. हमने रेलवे से बात किया था, आज इंतजाम होना था, पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। कल नहीं तो परसों हो जाएगा, मैक्सिमम कल आप निकल जाएंगे, ठीक है? मुझे बताया गया है खाने में कुछ प्रॉब्लम था, वो भी मैंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है। अच्छा खाना आ जाएगा, थोड़ा शांति से रहो, ठीक है? शिमला में से चीफ में से कुछ नहीं होता। किसने भेजा? अल्टीमेटली भेजा तो हमने ही है, ठीक है? पूरे देश में बहुत सारे लोग ऐसे ही चल के
आपको भी भेज देंगे, आप लाख है आपको भी भेज देंगे। आज हो रहा था इंतजाम हमारे तरफ से, ऑलरेडी चिट्ठी गई है, आज शेड्यूल होना था, रेलवे का थोड़ा प्रेशर है, मैक्सिमम कल या परसों हो जाएगा, 99% कल हो जाएगा, ठीक है। तो शांति से रहो, अभी अच्छा खाना आ जाएगा। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो जो लोकल ऑफिसर होंगे वो ख्याल रखेंगे, ठीक है। Taking the in Chennai, that special officer, Dr. Radhakrishnan, has been appointed, and every zone IAS, senior IAS officer and police official has been appointed. They are monitoring effectively. We have a task force committee headed by Chief Secretary, and Honorable Chief Minister is monitoring in regular basis, and Health Department also coordinating with the Chennai Corporation. Inter-department coordination is very effectively we are doing here. So, I mean, now our focus is to reduce the case in Chennai. So, Chennai definitely, our population is 85 lakhs. It's really, it's a big challenges, and we have another new challenges also. So, people from other states, they are entering by train and by flight and by road transport. In checkposts itself, we are testing those kind of persons also. So we hope definitely we are going in right pathway. In other side, that aggressive testing, early diagnosis, proper clinical. हुकूमतों की लाख कोशिशों के बाद भी बाहरी मजदूर अपने वतन जाने पर अड़ गए हैं। उनका सीधा इल्जाम है कि दावे कुछ भी हों, लेकिन उनका पुरसा हाल कोई नहीं है। 2 महीने से ज़्यादा दिनों के लॉकडाउन झेलने के बाद मगरबी बंगाल के मजदूर पैदल ही चल पड़े हैं। हैदराबाद से तकरीबन 2000 किलोमीटर के सफ़र को मौजूदा हालात से बेहतर बता रहे हैं। ऐसे मजदूरों से बात की हमारे हैदराबाद के नुमाइंदे प्रसाद भोसेकर ने। इतने ट्रेन और बसेस होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे माइग्रेंट लेबर्स हैं जो अभी भी अपने गांव जाना चाहते हैं, कैसे भी हो। इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति है, शांतनु, जो कि बंगाल से है और अभी ये जा रहे हैं सड़क के रास्ते। शांतनु, बताओ कि क्या ऐसी जरूरत है कि तुमको अपने गाँव जाना है, कहाँ जा रहे हैं? गाँव कलकत्ता जाना है मेरे को। कलकत्ता, इधर से कलकत्ता जाएगा, मेन रोड से कलकत्ता जाएगा। तो कैसे? कलकत्ता तो यहाँ से कम 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, कैसे जाएगा वहाँ से? ट्रक कुछ बस मास कुछ मिल जाए तो। लेकिन यहाँ की सरकार जो है आपको खाना दे रही है, पैसा दे रही है, ट्रेन भी है यहाँ पे, तो आप सड़क के रास्ते से क्यों जाना चाहते हैं? वो बात नहीं है, वो तो काम करता था, पैसा ठेकेदार पैसा भी नहीं मिलता, कैसे जाएगा घर? वो तो पैसा नहीं दे रहा है। पैसा देगा तो काम चलेगा तो होता, काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, घर तक पैसा बैठ के कितना दिन खाएगा? अभी ट्रक में जाएंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा ना, तो फिर पैसा कैसा देगा? मेरे पास पैसा है, 1000 रुपये बच्चा हुआ है और जितना भाड़ा है देखता है कैसे ऐसे ही जाना होगा। तो यहाँ से कलकत्ता जाएंगे आप 1000 रुपये से? हाँ, जाना होगा, पैदल जाना होगा, थोड़ा ट्रक कोई मदद करे तो ट्रक से जाना होगा। आपने ये पता नहीं किया कि कई सारे ट्रेन भी है जा रहे, जो श्रमिक ट्रेन है, उसमें भी लोगों को भेज रहे हैं? नहीं, मेरा भी ट्रेन में नहीं हुआ। OTP नंबर जो है पास किया, पास तो अभी कलकत्ता का गाड़ी भी नहीं है। तो आपके हिसाब से कितने दिन में कलकत्ता चले जाएंगे? इतने हिसाब से जो गाड़ी मिलता तो 7-8 दिन से चला जाएगा कलकत्ता, गाँव में पहुँच जाएगा 6-7 दिन में। तो फिर अगर परिस्थिति अच्छी हो जाती है तो क्या फिर यहाँ पे आएंगे? आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम बारबेल्टर का काम करता है, तो काम तो करना चाहिए हमको, काम तो जरूरत है, इधर नहीं तो दूसरी जगह में जाना होगा। वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हम बिहार जा रहे हैं। प्लेटफार्म पे गया, लेकिन उधर से पुलिस वाले ने मार के भगाता है, नहीं जाने तो बोलता है कि गाड़ी नहीं है। तो हम लोग आ गया ये नागपुर रास्ते में, हम लोग सोचा बस से चले जाएंगे नागपुर होके ऐसे, तो इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो इतने ट्रेन गए हैं, लगभग 90 से भी ज्यादा ट्रेन गए हैं, बस गए हैं, सभी लोग, काफी सारा लोग बिहार का लोग गया है। क्यों आप लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन बना रखा है, उसमें जो है क्या बोला कि मैसेज भेजेंगे तब तुम लोग जाना है, उसके बाद मैसेज नहीं भेजा, हम लोग तो क्या करेंगे वहाँ, कैसे भूखे मरेंगे? हम लोग चल दिया, क्या करेंगे? अभी एक भी पैसा साथ में नहीं, कहीं पर पानी पियेंगे खरीद, पैसा नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? वहाँ पर जो हम लोग मर जाएंगे भूख से। यही बात है, रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, मैं फिर भी वो नहीं, हम लोग अभी मैसेज भी नहीं दिया है, उन्हें फोन किया है। तो इतने दिन से चल रहा है, लगभग 2 महीना हो गया यहाँ पर आकर के,
तो क्या खाने पीने की व्यवस्था नहीं है? खाने को नहीं दे रहे? वो खाने के लिए नहीं देता है, बोलता जाओ अपना जहाँ मर्जी है वहाँ जाओ, क्या करेंगे? हाँ, वही बोलता है सर हम चलो के अब जो निकाल दिया था हम क्या करेंगे वहाँ पर क्या करेंगे, अब चलो पैदल चलेंगे। अभी आपको कितना दिन लगेगा बिहार जाने के लिए? अभी ऐसे पैदल जाने से तो बहुत दिन लग जाएगा। पैसा है क्या आपके पास? नहीं, पैसा तो नहीं है, वो 200-400 है। वो यहाँ से हम लोग सोचा रोली पकड़ के चला जाएंगे नागपुर, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे बस पकड़ के। उधर बोलता है सरकारी बस मिलता है, तो हम लोग इसीलिए जा रहे हैं नागपुर। क्या काम करते थे आप बताइए, आप इधर आइए, बताए क्या काम करते थे आप लोग? मजदूर है हम लोग, मजदूर है। कितने दिन से, कितने सालों से हैदराबाद में रह रहे हैं? हैदराबाद में रहे 3-4 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया है। इसमें 2 महीना बैठ कर उधर खा रहे हैं 3 महीने से। क्या अभी हालत ठीक होने पे फिर वापस आएंगे या फिर अपने गांव में अपना काम देखेंगे? अभी घर में काम देखेंगे, इसके बाद आएंगे। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद बोलसेकर, ज़ी मीडिया, हैदराबाद। और रमजानुल मुबारक के बाद आने वाले ईद के त्यौहार से 5 दिन पहले तेलंगाना में बाजारों को खोलने की हिदायत दी गई है। रियासती सीएम चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन 4 में कुछ बदलाव कर राहत देने की कोशिश की है। हालांकि हुकूमत के फैसले से दुकानदार खुश नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि ऐसे हालात में कोई बाहर निकले को तैयार नहीं है तो फिर खरीदारी कौन करेगा। हुकूमत कहती कुछ और है और आम लोग उसे दूसरे तरीके से समझने लगते हैं। तेलंगाना की हुकूमत से बाजार तो खो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को राहत मिली है और कुछ लोगों को नहीं। हैदराबाद में बाजार 1 दिन आड़ खुलेंगे। रमजान के 5 दिन कबल बाजार खोल दिया गया है, लेकिन जो दुकानदारों को आज का मौका मिला है खोलने का, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के काफी दिनों के बाद इन्हें खोलने का मौका मिला। आपको 1 दिन आड़ खोलने का मौका मिला कपड़ों की दुकान को भी, क्या इससे हुकूमत के इस फैसले को फायदा होगा आपको? देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा, जाहिर सी बात है। जब मार्केट खुलेंगे कुछ कस्टमर आएंगे, फिर दुकानदारों का भी फायदा होगा। गवर्नमेंट जो भी कर रही है मतलब अच्छा ही कर रही है सब, क्योंकि जो है अभी तक तो 2 महीने से बंद होने की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी दी। तो उससे ये है कि लोगों को काम भी मिलेगा, समझे जो माइग्रेंट्स लेबर वगैरह भी है और ये जो यहाँ लोकल लेबर है उनको भी काम मिलेगा, उनको भी समझिए बड़ी सहूलत रहेगी इससे। तेलंगाना में 5.5 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर तेलंगाना छोड़ चुके, लेकिन आज भी लोगों को उम्मीद है कि आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना में जो रिलीफ मिली है उसके बारे में क्या कहना? 5 दिन ईद से पहले तेलंगाना खोल दिया गया है, क्या कहना? और पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान कोरोना वबा से तो जूझ ही रहा है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा के साहिली इलाकों में एक और बहरान छाने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में यह अम्फान तूफान खतरनाक शक्ल ले सकता है। ओडिशा सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के शुमाल मशरिक की जानिब से बढ़ने का खदशा बताया जा रहा है। तूफान के खदशे को देखते हुए यहाँ उड़ीसा और मगरबी बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं रेलवे ने इन्फेक्टेड इलाकों में अपनी ट्रेनों को पटरी से जोड़ दिया है। इस मामले में मुलाजिमों का कहना है कि तूफान की तेजी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि ट्रेन को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। वो तूफान के वजह से ना तूफान आने वाला है, इसीलिए हम लोग चेन और स्कीट से ताला लगा के उसको टाइट से बांध के रखते हैं ताकि कोई हवा का तेज बहाव से यहाँ से दूसरा जगह कोई ट्रेन ना चला जाए या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर कोई किसी का चोट ना आ जाए, इसीलिए पहले से सेव करके उसको चेन और ताला से बांध के रखते हैं। यहाँ स्टेशन शालीमार साइडिंग में जितने भी रेक हैं सब में लगा है? हाँ, कितना? जितना लाइन में गाड़ी खड़ा हुआ है सब में चेन और ये ताला से बांध के रखे हैं। फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में इतना ही।